Now, what is thin client architecture? We have already discussed about it in the previous term. Just wait for a minute. So you have seen this architecture. So this is a thin client architecture, and a thin client architecture relies on the server to perform most of the work, leaving the client to do the least amount of work. And in this case, the client, in this diagram, it is web browser. So it simply sends the user's request to the server. At this place, web server part, the server does the processing such as generating a map, performing analysis. All the task is done at the server end. The results typically comes in the HTML format, and it has embedded with GIF or PNG or JPEG images. Like you have done the HTML coding, isn't it? So in when you are doing the coding, you are embedding an image inside your web page, whether it was a satellite images or your own image. You have embedded those images in your web page. So similarly over here also, that the results are typically returned in HTML file format, and these HTML files are embedded, or these HTML pages are embedded with the different images like GIF, PNG, JPEG, such type of images. The very first example of WebGIS, which was the Park Map Viewer, it was developed by whom? Who has developed this application? Park Web Map Viewer. Yes, anyone? Steve Puts. Yes, Steve Purds was the person who has developed a map here at Xerox PARC. So the very first application or very first example of WebGIS is Park Map here. So that was the example of thin client architecture. Okay. The very first WebGIS which was developed was the example of thin client architecture. So we have seen the advantages as well as disadvantages of thin client architecture. What was that? Like first thing is, at the user end, at the client end, there is a minimal requirement. The user doesn't need to install any software other than a web browser. Not even a plugin is required in case of a thin client architecture. Most of the heavy processing is done by the server. Therefore, the client doesn't need the powerful computer. All these application means all those application which are developed on a thin client architecture, they work very well on a low end computer at the client end. There is no problem in that case. Now if we come to the disadvantage or the challenges part, first thing is pressure is on the GIS server, because all the operations are done over here. All the operations are routed by the web server to the GIS server, and the processing is done by GIS server, and later on results are sent back to the client. So therefore there is a lot of pressure at the server end. Then there is a limited user interaction, means the user interface usually built with plain HTML and limited JavaScript. So user interaction is not very smooth. The user requirement is not fulfilled. There is a centralized control at the server end. So whatever is needed at the client end is not much catered. Means you cannot make a customized changes over there. Another thing is, since everything is done in the HTML and HTML doesn't support the vector data. So this one is a problem, that vector GIS data is not supported in a thin client architecture. Coming to the next one, which is a thick client architecture. Okay, so this one was the diagram of thick client architecture.
You can think that a thick client architecture is at the other end of the spectrum of thin client architecture. It is just like the opposite of that one. So in thick client architecture, it relies on the client rather than the server to perform most of the processing. Previously, we have learned most of the processing is done at the server end. But here, it is done at the client end, and this is usually accomplished at the client end by installing plugins, by using Java applet, by using ActiveX control, these things. Any question? Okay. So, there are different, as you can see over here, the browser and plugin, Java applet, JavaScript, ActiveX, all these things are installed. Therefore, the processing part is done at the client end. The thick client requests the source data like coordinate of a vector data from the server and then render the output or perform the analysis at the client end. So this is how the thick client architecture works. Then there are some of the advantages, just like the thin client architecture, there are some advantages over here also, like fast interaction with the user as the logic or the program, all these things are placed on a local computer. The data is there, the program which is required to execute that one is there. So there is a lesser amount of round trip delays. There is lesser number of requests from the server. Much of the processing is done at the browser end. Less pressure to the server. But there are also disadvantages in this architecture. Like there is an inconvenience at the client end, which is related to the installation of plugins or installation of any native applications. And in some of the cases, users are not allowed to install any plugins or native applications. Like, if you work in any of the defense companies or defense department or any department which is critical, where the information is need to be protected, there is a lot of regulations over there. So you cannot simply install whatever you want to do. Means आपका मन है हमें plugin डालना है, हमारा नहीं चल रहा, हमारे को कोई कंट्रोल इंस्टॉल करना है, ये हमारी मर्जी है. सो वहां पर ऐसा चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम होता है कि वो अपने सिस्टम पे कुछ भी डाल सके. क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है. इस कारण से थिक क्लाइंट का ये एक प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज थिक क्लाइंट के लिए ये इंस्टॉलेशन जरूरी होता है, ये इंस्टॉल होंगे तभी ये वर्कआउट होगा. लेकिन कुछ कंपनीज में एक तो ये डिफिकल्ट होता है, अदर देन दैट ये सबके लिए इतना इजी नहीं होता. लाइक हम लोग अपने नजरिए से देखते तो ये सारी चीजें बहुत आसान लगती है, क्या है इसमें, कुछ बटन ही तो क्लिक करना है ना. लेकिन कभी आपने सोचा कि अपने घर के किसी एल्डरली पर्सन को अगर आपने देखा हो, उन लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप पे एक सिंपल अपडेट भी आता है तो वो परेशान हो जाते हैं. तो कोई भी नया चीज उनके सामने आ जाता है, वो जो भी चीज चलाते हो, ठीक है. तो अगर उनके सामने कोई भी नया इस तरीके का एप्लीकेशन आता है, कोई नया इंफॉर्मेशन मांगने लगता है, तो उन लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको हमें कैसे हैंडल करना है. यही चीज अगर आप जनरल पब्लिक के टर्म्स में सोचिए, है ना, उन लोग के तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भले ही वो चीजों को यूज ना कर रहे हो, लेकिन इवन आज के टाइम में जो लोग यूज भी कर रहे हैं उनके लिए भी हर किसी के लिए ये इतना इजी नहीं होता कि वो सब सामानों को बहुत इजीली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें. थिन क्लाइंट में ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थिन क्लाइंट में तो सब चीज बना बनाया मिल रहा है. उस केस में क्लाइंट एंड पर जो यूजर है उसको कुछ नहीं करना, बट इन थिक क्लाइंट ये सारे काम करने पड़ते हैं. तो अगर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ये करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, या जो सिस्टम्स है उस पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है यूजर का, उन केसेस में ये एक तरीके का प्रॉब्लम होता है. देन अनदर प्रॉब्लम कुड बी, इसमें जब बात करी जा रही है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रॉ डेटा, द कोऑर्डिनेट्स विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्वर. इट मींस that there will be a problem of internet bandwidth.
So there is a limitation which is posed by the internet bandwidth as well as the client computing power. So many times it is not feasible at every place to transfer several gigabytes of data or MBs of data even. Isn't it? आप लोग भी कभी अपने एंड पे देखिए, लिमिटेड इंटरनेट अवेलेबिलिटी है आपके पास में, कोई भी नया चीज, जैसे हमने SIP का डेटा दिया, उसको डाउनलोड करना है तो हमने आपको बोला कि देखो वीकेंड पर या कल आपका ऑफ है तो अपना छुट्टी वाले दिन उसको डाउनलोड कर लेना जब इंटरनेट आपके यहाँ सफिशिएंट रहेगा। यही चीज यहाँ पे भी होती है, हम वो प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे, या इंडिया में एक तरीके से कहें कि डेटा पैक जो है बहुत सस्ता है ना? कि आपने कुछ मतलब एटमोस्ट 1000 का शायद कराते होंगे रिचार्ज 3 मंथ का, या इस तरीके का जो भी आपका अपना पैक रहता हो। BSNL उससे भी सस्ता हमारा रहता है, तो हम 600 समथिंग का रिचार्ज कराते हैं और हमारा 3 महीने का पर डे 5 GB अराउंड डेटा हमको मिलता है। तो अलग अलग कंपनीज में आप देखेंगे इंडिया में डेटा पैकेज बहुत सस्ता है, आप डेटा पैक बहुत लो कॉस्ट पर आज के टाइम पर इंस्टॉल कराते हैं, परचेस करते हैं। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले के अगर आपको सिनारियो याद होगा, उस समय हम लोग 1 महीने का समवेयर 28 MB डेटा लेकर आते थे, है ना? मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन समवेयर अराउंड 200 या 250 रुपीज का 50 MB या 100 MB इस तरीके का डेटा पैक होता था। तो आप ओवर द टाइम, कोई बहुत लंबा टेन्योर नहीं है, पिछले 10 साल के अंदर आपने डेटा पैक को कितना सस्ता होते हुए देखा है। या जो वॉइस कॉल्स है उनको एक तरीके से आज हर कोई हर समय फोन ही करता रहता है, करते हुए मिलता है, क्योंकि यहाँ डेटा पैक इतना सस्ता है। या वॉइस कॉल आपने कुछ अपना एक टैरिफ डलवा लिया, पूरा का पूरा सब चीज फ्री है, तो आराम से जितना मर्जी हो उतना बोलते रहो। ये फॉरेन कंट्रीज में अगर आप पाएंगे, डेटा पैक्स आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। जब हम लोग थिक क्लाइंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रॉ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वेक्टर डेटा के कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इन दैट केस द डेटा साइज इज लार्ज, है ना? ये हमेशा होगा, रॉ डेटा इज ऑलवेज मोर इन साइज एज कंपेयर टू द प्रोसेस डेटा। लाइक आप अपने ही पास में एक एग्जांपल देख लो, आप NYC का जो डेटा आपके पास है उसकी शेप फाइल्स आपके पास में है, उसका साइज देखो, और उसी का आपने लेआउट मैप जनरेट किया था, है ना? उस लेआउट मैप का साइज मच मच लेस है एज कंपेयर टू द रॉ शेप फाइल्स। यहीं से आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत है, कि जब हम लोग थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसमें रॉ डेटा को पास कराने की बात करते हैं, प्रोसेसिंग क्लाइंट एंड पर हो सकती है, बट इस पूरे ट्रांसफर में इंटरनेट लगेगा, देन इट बिकम अ कॉस्टली अफेयर। यहाँ पर जो इंटरनेट बैंडविड्थ है वो मैटर करती है, और जैसे कि बता रहे हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट कॉस्ट हमारे लिए भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन कुछ समय पहले हमारे लिए ये भी बहुत महंगा था, और आज के टाइम में भी कई देशों में ये बहुत महंगा है। हमारे पास में आज बहुत चीजें आ गई तो उसकी जो कमी है वो भूल जाता है लोग, लेकिन डेटा पैक स्टिल एक डिफिकल्टी होती है। कई देशों में जहां पर ये महंगा है वहां पर ये थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर एक कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है, कॉस्टली आर्किटेक्चर बन जाता है। देन अनदर थिंग इज सर्टेनली कि क्लाइंट एंड पर सोफिस्टिकेटेड GIS ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। जैसे एक प्रॉब्लम आप लोग अपने एंड पर खुद देखते हैं, आपका सिस्टम हैंग हो जाता था, QGIS जब आप लोग चलाते थे उस केस में आप लोग, कई स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता था कि चलाते चलाते सिस्टम हैंग हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम की कैपेबिलिटी लिमिटेड है आपके एंड पर। अभी HTML चलाते हैं, किसी के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि इसमें एक तरीके से कुछ चाहिए ही नहीं, बट जब QGIS चलाते थे तो हर समय 50% स्टूडेंट के एंड पर ये प्रॉब्लम रहता था कि हमारे एंड पर ये चलता नहीं है, धीमे चलता है, हैंग हो जाता है। ये प्रॉब्लम थिक क्लाइंट में भी रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग क्लाइंट की मशीन पर हो रही है, और अगर क्लाइंट की मशीन इनफ कैपेबल नहीं है, इन दैट केस प्रॉब्लम आएंगी, है ना? थिन क्लाइंट पे नहीं हो रहा था क्योंकि थिन क्लाइंट में कंप्लीटली प्रोसेस डेटा ट्रांसफर होता है, तो वहां पर जो डेटा ट्रांसफर है उसका साइज भी कम होता है, और प्रोसेसिंग क्लाइंट के एंड पर कुछ करनी नहीं रहती है, ठीक है?
तो ये पूरा हम लोग ने एक बार फिर से लास्ट टाइम पे भी देखा था, आज के टाइम पे भी और डिटेल में देख लिया। थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर, व्हाट इज थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर, व्हाट इज थिन क्लाइंट आर्किटेक्ट थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर, what are the advantages and disadvantages of both the architectures. So यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल में राइट डाउन करिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिक एंड थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। एक टेबल बनाइए, 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कॉलम में थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, थर्ड कॉलम में थिक क्लाइंट आर्किटेक्चर। क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। क्विकली 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, पूरा डिटेल में हमने एक तरीके से डिस्कशन यहाँ कर लिया है और कुछ डिफरेंस पैरेलली आपको बताते भी जा रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से राइट डाउन करिए, इन दोनों आर्किटेक्चर्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा।
चलिए आलोक बताइए, what is the difference between thick and thin client architecture? Yes, ma'am. First difference is on the basis of functionality. As in thin client architecture, it is only limited to display the user interface, and all the functionality is depend on the server. In other hand, thick client, some functionality is done on the user side also. And ma'am, second, I have written on the basis of communication. In thin client architecture, web browser does not directly communicate to GIS server, and in thick client, it can directly communicate to GIS server. नहीं सेकंड वाला मुझे नहीं क्लियर हुआ लोग, फिर से मतलब एक्सप्लेन करिए। कभी डायरेक्टली तो वो क्लाइंट करते ही नहीं ना, वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर से क्लाइंट जीआईएस सर्वर पे जाता है, तो ये चीज कैसे कह रहे हैं आप? मैम सेकंड वाला सही नहीं, सेकंड वाला सही नहीं है। जो भी रिक्वेस्ट होती है आप उसका आर्किटेक्चर भी देखिए, दोनों आर्किटेक्चर में आप देखेंगे वेब सर्वर लगा है, तो ऐसा नहीं होता इन क्लाइंट में डायरेक्टली चला जा रहा है जीआईएस सर्वर के पास, या एक क्लाइंट में डायरेक्टली चला जा रहा है, वेब सर्वर से ही रूट होकर के जाएगा। उसको सेकंड वाला हटा दीजिए। चलिए और बताइए। मैम अभी तक इतना ही लिखा था। चलिए ठीक, ओके नेक्स्ट अरुण। Yes, ma'am. Hello, बताइए। ma'am. I'm audible. यस अरुण आप ऑडिबल हैं, बताइए डिफरेंस। Ma'am, difference between the thick and thin client architecture on the basis of communication need. So for thin client architecture, required communication with a server. On other hand, thick client perform at the client. And other hand, on the transmission from server, in thick client architecture are completely processed, and the thick client architecture, the data is still under processed of the and large size. And ma'am, the second one is the आपने तो नोट्स खोल करके नोट्स का ही पूरा का पूरा चीज लिख दी है, अपने से नहीं लिखा है। मैम अपने से लिखा है, बट मैम गलत होगा इसलिए बता रहे हैं मैम। फर्स्ट वन इज द थिक एंड अपने से लिखो, अपने से लिखो, ये वाला चीज तो हम ही पढ़ाएंगे और आपके पास नोट्स में है। थोड़ा सोचो, है ना, डिफरेंस लिखने के लिए जब सोचोगे, अब जैसे आलोक ने कुछ गलत बताए तो उनका कुछ गलत थॉट प्रोसेस चल रहा होगा तो वो करेक्ट हो गया ना। गलती करोगे तब तो सही, जब तक गलत चीज बोलोगे तभी तो हमें पता लगेगा और तभी वो चीज आप करेक्ट करोगे। तो कॉपी नहीं करो, उसको अपने से लिखो, ठीक है ना? ओके मैम। नेक्स्ट भगत। Yes, ma'am. बताइए डिफरेंस। Thin clients are depends on remote servers to communicate, and thick clients at least may depend on server or at least have some operation which run on the system. And thin clients are in thin client data are typically stored in servers, or in thick client we can store the data locally on our local system. नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं कह सकते भगत। डेटा स्टोरेज सर्वर पर ही रहता है, ओके, whether it is a thick client or thin client architecture, in both the cases the data is present at the data tier or at the server's end. But whenever there is a requirement, that data could get transferred in case of thick client, okay. So Yes, it ma'am. might be locally stored for some time, but yes, the data is placed at the data tier.
It can be transferred in case of thick client. It can be stored for a while on a local machine. So even in the case of there is any problem, or if suppose there is the server get crashed, some of the functionality can be carry out on the thick client side. Okay. Okay. Continue करिए. मैम इतना ही लिखे थे. Okay. Next, Ruchi. Ruchi. Yes, ma'am. Difference बताइए. Ma'am, the client is a system which can connect the server even without the network, ma'am, and not dependent on रुक जाओ. बिना नेटवर्क के कुछ नहीं कनेक्ट होगा. इंटरनेट नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कनेक्ट होगा. क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए चाहे थिन क्लाइंट हो चाहे थिक क्लाइंट हो, अगर कनेक्शन बनाना है दोनों के बीच में तो नेटवर्क होना ही होना है. ये आप कह सकते हो कि नेटवर्क अगर काम नहीं कर रहा तो भी थिक क्लाइंट के केस में कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी जा सकती है, क्योंकि रॉ डेटा डाउनलोड होता है तो वो रॉ डेटा पर आप काम कर सकते हैं ना. अगर आपको कोई शेप फाइल दे दे, इंटरनेट चला भी जाए तो आप उस शेप फाइल पर कुछ काम करके दिखा सकते हो ना हमें. लेकिन अगर हमने आपको लेआउट मैप दे दिया, थिन क्लाइंट के केस में लेआउट मैप दे दिया, एक जेपेग फाइल पकड़ा दिया आपको, आप केवल उसको डिस्प्ले करा सकते हो, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते. ठीक है. तो कनेक्शन सर्वर से कनेक्ट होने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे थिन हो चाहे थिक हो. लेकिन इन केस ऑफ क्रैश, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कुछ काम थिक क्लाइंट के एंड पर हो सकता है ना. चलिए कंटिन्यू करिए. Ma'am, in thin client server, ma'am, in thin client we perform calculation and computation. Yes, ma'am. Computation task, ma'am. And thin client thick client not dependent on server application. मैम मतलब मैम इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है हमें थिक क्लाइंट में. मैम कौन से सॉफ्टवेयर की नहीं पड़ती है? मैम एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. मैम कौन से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं पता मैम. थोड़ा सा नहीं सही आ रहा है रुचि, मुझे अभी आपको सेकेंड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, क्योंकि चलो ठीक है मैं इसको डिफरेंस बताती हूँ. मैम सर्वर्स एप्लीकेशन, मैम सर्वर्स एप्लीकेशन. नहीं पड़ेगी. ओके. चलिए कंपैरिजन देखते हैं. कंपैरिजन बिटवीन द थिक एंड थिन क्लाइंट architectures. So in a thin client architecture, the functionality of the client is limited to the display of the user interface, and all the functionality of the application must be implemented at the server. On the other hand, a thick client implements much of the functionality of the system, such as some data processing functionality. तो ये वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. वन बाय वन अब इसके चार यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो चार अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑन द कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है. कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट में क्या क्या है? थिन क्लाइंट में थिक क्लाइंट की तुलना में जो फंक्शनैलिटी, जो कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं सर्वर से. क्यों ज्यादा होते हैं? बिकॉज most of the functionality is done, or we can say all of the functionality is done at the server end. So that's why there is more communication with the server as compared to the thick client. Why? Because in thick client some of the functionality is done by the client only. So the number of communication, the number of time the contact is made from the server is less as compared to the thin client. ठीक है. थिक क्लाइंट में कम सर्वर से बार बार बात कम करी जाती है, क्योंकि उसके पास में खुद की कैपेबिलिटी होती है, खुद वो कुछ काम कर सकता है.
जबकि थिन क्लाइंट अपने एंड पर कोई काम नहीं कर सकता। तो आप जब अपने एंड पर कोई काम नहीं करोगे तो आप बार बार किसी को बुलाओगे ना, मेरे लिए ये कर दो। घर पे होता है ना कि कोई खुद से जाकर के अपना काम कर लेता है, तो बार बार किसी को कम बुलाएगा। जो खुद से काम नहीं करेगा वो बोलेगा पानी भी हमें दे दो, यहीं पर चाय भी दे दो, यहीं पर खाना भी दे दो, ये उठा करके दे दो, वो उठा करके दे दो, होता है ना। तो कुछ लोग जो काम नहीं करते वो बार बार सबको बुलाते हैं, कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट उन्हें ज्यादा पड़ता है। जो अपने से अपना काम करते हैं वो काम कम बार घर में दूसरे लोगों को बुलाएंगे। तो इसी तरीके से सोच करके आप थिन और थिक को याद रखिए। थिन अपने एंड पे कोई काम नहीं करता, सब काम वो सर्वर से करवाता है। तो जब दूसरे से काम करवाओगे तो दूसरे को बार बार आप पुकारोगे, है ना, बुलाओगे ना, ये काम कर दो। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ टाइम द कम्युनिकेशन इज मेड और नंबर ऑफ टाइम द कॉल इज मेड टू द सर्वर इज more in thin client. In case of thick client, since it is capable of doing some of the task at its own end, therefore number of calls, the number of communication established by the client to the server is lesser. Second thing, okay, type of data, ठीक है। थिन क्लाइंट में क्या हो रहा है, कंप्लीटली प्रोसेस डेटा मिल रहा है ना। कंप्लीटली प्रोसेस डेटा का मतलब क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन में जो साइज होगी वो कम होगी, होगी कि नहीं होगी। कि अगर सपोज किसी को भूख लग रही है और खाना खाना है, बना बनाया खाना मिल जाए तो कितना भार होता है इसका। एक प्लेट में दाल चावल मिल जाए तो उसका कोई वेट ज्यादा थोड़ी ना होगा। आपको क्या मिल रहा है उस केस में, कंप्लीटली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, पूरा खाना बना बनाया आपको दाल चावल सब्जी मिल गई। दूसरे एंड पे सोचिए, जो थिक क्लाइंट है, मतलब जो वो पूरा काम बना बनाया खाना वो नहीं ले रहा, वो अपने हिसाब से अपने पसंद का चावल ले कि हमको सादा चावल नहीं, आज हमको फ्राइड राइस खाना है, तो अपने मन का चावल बनाएगा, अपने मन की दाल बनाएगा। उस केस में क्या होगा, उसको रॉ डेटा की जरूरत पड़ेगी। रॉ डेटा मीन्स चावल लेकर के आना पड़ेगा, दाल लेकर के आना पड़ेगा, सब्जी लेकर आना पड़ेगा, मसाला लेकर आना पड़ेगा, होगा ना। तो यानी कि उसको सब चीज रॉ चाहिए। अब एक एक चीज उठा कर लाओगे तो भार तो बढ़ जाएगा। पूरा का पूरा थाली में बना बनाया सामने रख दिया जाए और आपने केवल हाथ से उठाकर उसको खा लिया, उसमें तो काम कम है। यही चीज थिक और थिन में हो रही है। थिन में क्योंकि कंप्लीटली प्रोसेस डेटा मिल रहा है, बना बनाया दाल चावल मिल रहा है, इस कारण से जो साइज ऑफ डेटा ट्रांसफर है वो कम हो रहा है। थिक क्लाइंट के केस में खुद में किस रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, खुद से किचन में जाकर के काम करना है, मतलब जो डेटा का साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। सो कम्युनिकेशन नीड में द साइज ऑफ डेटा transfer, in case of thin the size of data transfer is less, in case of thick client the size of data transfer is more. Then एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है, in case of thin client simple operation like pan, zoom on the map require a request to the server to compute the new view of the map, which is then transferred to the client. So there are many data transmission operations sending each a small portion of map to the client. On the other hand, in a thick client, the server sends big portion of the map data to the client in a raw format that is afterward rendered by the client. In this case, the zoom and pan operations do not require new data transmissions. So this implies that in a thin client, the fundamental part of the communication is caused by multiple processing requests, whereas in a thick client, it is caused by transmitting large amount of unprocessed data. तो ये पहला वाला आप लोग क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन नीड में नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, थिन क्लाइंट में ज्यादा है, थिक क्लाइंट में कम होती है सर्वर को कॉल। सेकेंड, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, थिन क्लाइंट में प्रोसेस डेटा होने के कारण लेसर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है, थिक क्लाइंट में लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। छोटा सा भी कोई काम हो रहा है बार बार, जैसे जूमिंग, पैनिंग, इसके एग्जांपल देकर के यहाँ फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। थिन क्लाइंट में ज्यादा होगा, थिक क्लाइंट में क्योंकि रॉ डेटा आ रहा है तो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन कम होगा। चलिए नेक्स्ट, फंक्शनैलिटी अपडेट।
Functionality update means, like, suppose कोई इंटरफेस में अपडेट आ रहा है ना, या कोई डेटा पॉलिसी में चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज किया जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नया अपडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। आप देखते होंगे कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसमें 6 मंथ 1 ईयर ऐसे में एक नया वर्जन आ जाता है। कोई भी अपडेट होता है, चाहे डेटा का अपडेट हो और सॉफ्टवेयर अपडेट हो, थिन क्लाइंट के केस में इसे मैनेज करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, डेटा क्लाइंट के एंड पर कहीं रखा नहीं जा रहा है, उसको तो बना बनाया डेटा मिल रहा है। आज के केस में कोई नया रोड नेटवर्क ऐड हो गया, क्योंकि जैसे बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो कोई नया रोड बन गया अगर आपके सामने से, तो थिन क्लाइंट में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपडेटेड डेटा क्लाइंट को दिखाने लगेगा। वहीं अगर थिक क्लाइंट की बात करें तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि किस तरीके से नया डेटा मिले यूजर को। दूसरा दिक्कत और होती है, आप लोग कई बार देखते होंगे नया वर्जन आ जाता है, जैसे आपने वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, तो वेब ब्राउजर का एक न्यू वर्जन अवेलेबल है, लेकिन तब भी लोग उसे इंस्टॉल नहीं करते, पुराना वर्जन लेकर के काम करते रहते हैं, है ना। तो मेरे सिस्टम में आ रहा है, ये देखिए, अपग्रेड टू विंडो 11 इज रेडी फॉर योर पीसी। तो मेरे लिए विंडोज 11 रेडी है, तब भी हम विंडोज 10 पर ही काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा हमारे पास में अपग्रेड अवेलेबल है, लेकिन हम तब भी अपग्रेड नहीं करा रहे, तब तक नहीं कराएंगे जब तक मजबूरी ना हो जाए, जब तक सिस्टम वो ना हो जाए, लास्ट डेट डेडलाइन ना आ जाए, तब तक हम लोग वही पुराना वर्जन यूज करते रहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर के साथ 11 पे भी वो सपोर्ट चाहिए, 10 पे भी वो सपोर्ट चाहिए, है ना। तो अगर हम कोई ऐप अपने पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे सपोज गूगल अर्थ है, या कोई इंटरटेनमेंट है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स, हमने कोई ऐप इंस्टॉल करी, तो ये हमारे पास में उसको विंडोज 10 के लिए भी बना करके रखना होगा, विंडोज 11 के लिए भी बना करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्लाइंट अभी भी ओल्डर वर्जन पे कर रहे हैं काम। ये प्रॉब्लम आता है थिक क्लाइंट के केस में। सो फंक्शनैलिटी अपडेट में, इन अ थिन क्लाइंट द कंट्रोल ओवर द फंक्शनैलिटी इज एट द सर्वर एंड, whereas in a thick client some responsibility is delegated to the clients. This implies that updates in the functionality are easier in thin client architecture because little change is required to the clients. On the other hand, a change in functionality in a thick client architecture may imply an update of all installed clients or the need to maintain backward compatibility with old clients. Next, technological requirement. Okay. इसका तो ऑलरेडी हम लोग ने कई बार डिस्कस कर, यस मैम आपने अभी बोला था जो एक की रॉ डेटा एंड प्रोसेस डेटा रिक्वायरमेंट होती है वो समझ में आया मैम, बट आपने लास्ट उसके बाद ये बोला था लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड इन थिक वन एंड लेस अमाउंट इन थिन वन, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। रॉ डेटा का जो अभी शेप फाइल वाला एग्जांपल भी दिया था, एक शेप फाइल अगर आपको हम भेज रहे हैं, है ना, उस शेप फाइल का साइज जो है, जैसे एनवाईसी डेटा का जो एग्जांपल दिया कि एनवाईसी डेटा का अगर आपने शेप फाइल लिया, उसमें सेंसस ब्लॉक्स का डेटा, रोड का डेटा और सबवे स्टेशन का, 3 फाइल्स हैं, तीनों फाइल की साइज अगर आप नोटिस करें वो कितनी है, और अगर वो फाइल ना भेज करके अगर हमने उसका लेआउट मैप, जैसे किसी ने बोला कि हमको एनवाईसी के स्ट्रीट डेटा और सर्वे स्टेशन दोनों के डेटा को देखना है, ठीक है, तो अगर आपने उसका एक लेआउट मैप जनरेट करा करके आउटपुट में दे दिया उसको, तो अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो बहुत थोड़ा सा लगेगा। आप खुद भी देखोगे तो लेआउट मैप का साइज कितना बड़ा आपका बनता है ना, मैक्सिमम 4 MB 5 MB, ऐसा बहुत बड़ा बनाओगे तो ऐसा बनेगा। वहीं अगर आप पूरी की पूरी शेप फाइल किसी को ट्रांसफर करने लग जाओ, डेटा का साइज बहुत बड़ा होगा। इसको एग्जांपल अगर हम देखें,
देखिए अरे समय तो अपोजिट हो रहा है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। इसमें तो अपोजिट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लेआउट मैप्स बने हैं उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उसका हमने शायद इसका DPI बहुत ज्यादा रखा हुआ था जब इसको, इस समय अपोजिट दिख रहा है जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर फाइल साइज 6.33 की रॉ डेटा दिख रहा है और फिगर जो बन रहे हैं हमारे उनकी साइज 10 MB की आ रही है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जब इसका जो एक्सपोर्ट किया था उस समय इसका DPI बहुत ज्यादा था, इस कारण से इतना बड़ा साइज बन रहा है। बट यूजुअली होता है कि जब आप रॉ डेटा ट्रांसफर करते हो, रॉ डेटा मीन्स अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा फाइल्स उस एरिया का ट्रांसफर कर दोगे तो उसकी साइज बड़ी होती है। और वहीं अगर उसका लेआउट मैप वगैरह कुछ जनरेट करोगे, प्रोसेस डेटा, उसको केवल एक आपने एक JPEG इमेज बना करके दे दी तो साइज जो होती है वो डेटा की स्मॉल हो जाती है। ऑल्दो ये इस समय दिख नहीं रहा है मेरे एग्जांपल में, बट ये होता है, रॉ डेटा जो है उसका साइज बड़ा होता है और इस तरीके का जब आप प्रोसेस डेटा किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसकी साइज कम हो जाती है। वही चीज वहां पर बोली जा रही थी। ठीक, next one is technological requirement. The power required for a platform to run the client of a thin client architecture is limited to displaying the user interface and communicating to the server. On the other hand, much more power for a platform to run the client of a thick client architecture. For instance, a web-based thin client can be implemented using only HTML and a small script in JavaScript. On the other hand, a thick client may require a Java applet or an ActiveX control to be embedded in the web application. So obviously, the जो technological requirement है वो minimum होती है thin client के केस में, thick client के केस में वो ज़्यादा होती है। Last one, functionality restriction, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थिन क्लाइंट में क्योंकि प्रोसेस डेटा आप केवल सर्वर से आपका आउटपुट दिख रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सम क्लिक करके आप केवल डेटा को देख सकते हैं। लेकिन वहीं थिक क्लाइंट में अगर आप देखें कई सारी चीजें, प्लगइन्स यूज होता है, एक्टिवएक्स यूज होता है, एप्लेट, जावा एप्लेट्स यूज होते हैं, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रही हैं उनको किस तरीके से अकोमोडेट करना है, उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है, ये कंपैरेटिवली थिक क्लाइंट के केस में ज्यादा बड़ा काम होता है। थिन क्लाइंट में सच कोई चीज नहीं होती है, वहां पर एक तरीके से आपको केवल व्यू करना होता है चीजों को। इस कारण से जो फंक्शनैलिटीज हैं थिन क्लाइंट के केस में सिंपल, इसको हम रीड करते रहे, given that all the functionality of a thin client architecture is implemented at the server side, it is not difficult to implement interaction mechanisms more complex than single click of mouse. So this is not the case in case of thick client architecture. In thick client, the client component in a thick client architecture must be deployed specifically for each platform. Since interaction mechanisms vary from platform to platform, for instance, a thick client developed using ActiveX technology cannot be used in a Unix machine. Similarly, the interaction mechanism using a mouse in a Mac computer, which uses a single button mouse, are different from those in a PC, which is multiple button mouse. मतलब क्या है फंक्शनैलिटी का कि थिन क्लाइंट में तो चीजों को करना इजी होता है, लेकिन थिक क्लाइंट पे क्योंकि क्लाइंट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी इंश्योर करना ये ज्यादा टफ होता है थिक क्लाइंट के केस में। तो ये कुछ कंपैरिजंस थे जो कि थिन और थिक क्लाइंट के बीच में बनाए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। किस तरीके से, एक तरीके से ये कंपैरिजन भी और एक आपको आइडिया भी देते हैं कि दोनों आर्किटेक्चर कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिडलवेयर और ग्लू। तो इस पर जाने से पहले आप लोग को 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ग्लू।
ग्लू और मिडलवेयर, जो कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, मतलब क्लाइंट और सर्वर को कैसे एक साथ में काम कराया जाता है, उसके लिए कैसे यूज होता है, आरपीसी क्या होता है, मॉम मिडल मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर, ये क्या चीजें होती हैं, ये हम लोग ब्रेक के बाद देखेंगे। ठीक है, सो 10 मिनट्स ब्रेक।
Let's start the class again. Am I audible? Someone please confirm. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We have the difference between the thin client and thick client architecture by now. And we are now moving on towards a new topic. It is glue or middleware. Okay. So what is the role of this glue or middleware? It means that when a client and a server works, they are two independent systems, two independent components. So in order to make a smooth communication between a client and the server, there is need of a component that can translate whatever is said by the client to the server and whatever is replied by the server to the client. So this intermediate thing is called Ma'am, your voice got stuck, ma'am. yeah, this is what I couldn't make it. There was some network issue earlier. Okay. So you, the client and the server are two independent systems. And for the client communicate with the server, we need a connection component or translator to link them both. This intermediate connection component is called glue or middleware. The role of the glue is to allow the client and the server to talk in the same language and follow same set of rules so that when client makes a request, the server understands what it wants. So this is what the middleware is. It is basically a software. When we talk about the different operations, there are three things: RPC, remote processing call, middle-oriented middleware, message middleware, and publish push. Coming to the first, it is RPC. You can like making मैम कॉल करते हैं. Yes. मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मैम. Yes, ma'am. प्रॉक्सी इसके बाद का नहीं आ रहा है तो ठीक है. No, ma'am. No, ma'am. ठीक ठीक हो जाएगा.
ओके, कभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am, क्या मतलब break? ठीक है अभी। नहीं मैम, ब्रेक हो रही है अभी भी मैम। ठीक, मैं मैम अभी आपने क्या बोला समझ नहीं आया। सो मैंने फिर रिसीव करके फिर से ज्वाइन किया है। अब क्या कंफर्म करिए कि अभी ऑडियो ठीक आ रहा है कि अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम अभी ठीक है। ठीक है, सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर अभी फिर से ऑडियो में प्रॉब्लम आएगा तो इन्फॉर्म करिएगा। सो हमने पहले का सुना नहीं होगा। तो उसका ये है कि जब क्लाइंट सर्वर करते हैं तो जब कम्युनिकेशन किया है क्लाइंट को सही से समझ सके और सर्वर को समझ सके, इस कारण से एक भी ट्रांसलेटर जैसा लगाया जाता है जिससे कि प्रॉपर कनेक्शन एक लिंक एंड सर्वर के बीच में बने। ठीक, इसको मिडिलवेयर और कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज किया मैम जा रहा है। यहाँ पर मिडिलवेयर के लिए हमारे यस मैम स्टिल ब्रेकिंग ऑडियो नहीं ठीक आ रहा है। यस मैम, बहुत ब्रेक है। यस हो रहा है। सभी के एंड पर आ रही है प्रॉब्लम। यस मैम, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। मैम
Am I audible? Yes, ma'am. ओके, चलिए स्कोप के बारे में हमने मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर से बताइएगा। रिमोट प्रोसीजर कॉल पर आ रहे हैं, आरपीसी। आरपीसी मींस रिमोट प्रोसीजर कॉल, एंड आरपीसी का एक एग्जांपल हम लोग देखा समझते हैं, इट्स लाइक अ मेकिंग अ फोन कॉल। तो आप किसी को अगर मोबाइल कॉल करते हो, तो जैसे आपने कॉल किया, इनिशिएट किया, जब कॉल करेंगे तो आपके लिए वहां पर जिसको भी आप कॉल कर रहे हैं उस पर्सन को प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो कॉल अटेंड कर पाएगा। अगर नहीं है तो आप वेट करते हो जब तक कि वो प्रेजेंट ना हो जाए। एक बार वो प्रेजेंट होगा, कम्युनिकेशन कैरी आउट होगा, और फाइनली जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तो फोन हम लोग रख देते हैं और कनेक्शन क्लोज हो जाता है। यही चीज यहाँ पर आरपीसी में दिखाई गई है। A client process calls functions on the remote server and wait for the server to respond. The server then fulfills the request from the client by calling the remote procedure and send the request results back to the client. The client receives the results and closes the connection with the server. So अगर क्लाइंट को सर्वर से किसी फंक्शन की जरूरत है, फंक्शन मींस कोई ऑपरेशन अगर वो कराना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले क्लाइंट जो है वो सर्वर के पास में रिक्वेस्ट भेजेगा। किसी भी फंक्शन को आगे चल करके हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना सीखेंगे, लेकिन जब फंक्शंस बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर पास किया जाता है, ठीक है। तो क्लाइंट जो होता है, एक अगर कोई फंक्शन उसको सर्वर पे एग्जीक्यूट कराना है तो उसको कॉल करता है, वहां पर पैरामीटर्स को भेजता है, एंड देन क्लाइंट जो होता है वो वेट करता है सर्वर के लिए कि वो रिस्पॉन्ड करे। सर्वर देन क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, अपने एंड पर जो भी प्रोसीजर, जो भी फंक्शन होता है उसको कॉल करता है, एग्जीक्यूट कराता है, और जो रिजल्ट होते हैं वो वापस से क्लाइंट एंड पर भेजता है, ठीक है। फाइनली जब क्लाइंट को रिजल्ट मिल जाता है तो वो कनेक्शन क्लोज कर देता है, और इस तरीके से ही कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि आरपीसी इज जस्ट लाइक मेकिंग अ कॉल। तो जिस तरीके से आप फोन कॉल करते हो उसी तरीके से आरपीसी के थ्रू सर्वर पर अगर आपको कोई भी फंक्शन, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल आपको दिया गया था कि एज कैलकुलेशन कराना है, डेट ऑफ बर्थ और करेंट डेट आपने पास करी, तो उसके बेसिस पर वो कैलकुलेशन हो रहा है। इट मींस सर्वर अपने एंड पर किसी मेथड को कॉल कर रहा होगा, तब जाकर के उसका रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास में कि क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यही चीज आरपीसी में भी होती है। आरपीसी को सिंक्रोनस मेथड कहा जाता है। क्यों सिंक्रोनस कहा जाता है? सिंक्रोनस मींस एक ही समय पर क्लाइंट और सर्वर दोनों को ही रहना होता है। क्लाइंट कॉल इनिशिएट करता है, वेट करता है जब तक कि सर्वर ना आ जाए, और एक डेडिकेटेड कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्टैब्लिश होता है, उस पर डेटा ट्रांसफर एंड रिसीविंग होती है। इस कारण से इसको एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें अगर सर्वर के एंड पर कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सर्वर के एंड पर अगर फेलियर रहेगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ये 1-to-1 मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन एक क्लाइंट एक सर्वर से एक बार में बात कर पाएगा। दूसरा इसमें आता है हमारे पास में मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर क्या है? ये क्यूइंग सिस्टम है। क्यू मींस लाइन लगना। जैसे आप किसी को मैसेज करते हो, किसी को एसएमएस करते हो, किसी को ईमेल करते हो, तो यहाँ पर टेलीफोन वाला केस नहीं रहता कि आपने जब कॉल किया तो पर्सन को प्रेजेंट होना जरूरी। आपने किसी को ईमेल ड्रॉप किया, किसी को मैसेज किया, और जब वो व्यक्ति फ्री होता है तब उस मैसेज को देखता है, उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है। इसी तरीके से मॉम में भी यहाँ पर होता है। क्या क्या है यहाँ पर? 4 स्टेप प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है कि कैसे क्लाइंट और सर्वर के केस में इसमें कम्युनिकेशन होता है। द क्लाइंट मेक्स one or more requests that are put on a queue. The server will take those requests from the queue at a later time. The server then services the request and puts the results back on the queue. The client takes the result from the queue afterwards. Okay. तो यहाँ पर
असिंक्रोनस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट और सर्वर को दोनों को एक साथ एक समय पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज देता है, सर्वर जब फ्री होता है तब उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है। इस कारण से असिंक्रोनस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वन टू मेनी कम्युनिकेशन, मतलब सर्वर एक बार में कई सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं बन रहा है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो वन टू मेनी या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इसमें स्टैब्लिश हो सकता है। एक क्लाइंट एक बार में कई सारे सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है और एक सर्वर एक बार में कई सारे क्लाइंट्स को हैंडल करा सकता है। इसमें एक ओवरहेड आता है, वो है क्यू मेंटेनेंस का। जब भी आप क्यूइंग मॉडल पढ़ेंगे, शायद आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, क्यूइंग मॉडल में जब भी बात आती है तो क्यू हैंडलिंग एक ओवरहेड हो जाता है कि किस क्या सीक्वेंस होगा। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा FCFS मेथड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इस तरीके के अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग क्यू को हैंडल किया जाता है। सो ये एक ओवरहेड होता है जो कि मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर में आता है कि यहाँ पर एक क्यू बन रही है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये एक चैलेंज होता है। सो यही आरपीसी एंड मॉम के बीच में डिफरेंस है। आरपीसी में इंस्टेंट रिप्लाई आता है, मॉम के केस में जब सर्वर फ्री होता है तब रिस्पॉन्ड आता है। सर्वर अगर ब्रेक है, नेटवर्क को क्रैश्ड है, आरपीसी में कोई काम नहीं होगा, लेकिन मॉम में रिक्वेस्ट प्लेस्ड रहती है। जब नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाएगा तब वापस कम्युनिकेशन कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टीज को एक साथ प्रेजेंट होना आरपीसी के केस में जरूरी है, लेकिन मॉम के केस में ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कैसा रिक्वायरमेंट है। जैसे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस है, ठीक है, सपोज ओवरले के पहले आपको बफर कराना है, उस केस में हम आरपीसी मेथड प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिपेंड करता है इस स्टेप के रिजल्ट्स पर। लेकिन वहीं अगर हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं चाहिए, अगर हम वेट भी कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उस केस में मॉम का एक ऑप्शन होता है कि मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर को यूज किया जाए। तो ये आपने मिडलवेयर के बारे में पढ़ा कि अगर क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो हमारे पास में ये दो मेथड है, आरपीसी एंड मॉम। एक तीसरा पुश है, लेकिन वो उसको अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं। आगे जाकर के जब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा कि पुश में क्या हो रहा है। पब्लिश एंड सब्सक्राइब का वो होता है पुश, तो वहां से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से वो पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एक मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है वेब जीआईएस आर्किटेक्चर। ओके, वेब जीआईएस आर्किटेक्चर कंप्लीट नहीं है, पार्शियली कंप्लीट है ये एक तरीके से, लेकिन इसका जो क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट है वो आपने पूरा क्लियरली पढ़ा। व्हाट इज जेनेरिक वेब जीआईएस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, what is thin client architecture, what is thick client architecture, what is the difference between them, what is middleware। ठीक है, ये सारी चीजें अब आप लोग की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर अब मूव कर रहे हैं, वो है वेब मैपिंग। ठीक है, वेब मैपिंग एक तरीके से आप वेब जीआईएस का एक मेजर पोर्शन जो होता है, इट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी वेब मैपिंग। वेब मैपिंग क्या होता है इसका डिटेल हम लोग देखें, उससे पहले ये आप लोग का टास्क है कि आप लोग वेब मैपिंग के बारे में थोड़ा जल्दी से 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, इसके बारे में सर्च करिए। चाहे विकिपीडिया पेज खोल लीजिए, इसका विकिपीडिया में भी काफी डिटेल में दिया है, इसके बारे में रीड करिए। व्हाट इज वेब मैपिंग, इसको पढ़िए और आप लोग एक्सप्लेन करिए वेब मैपिंग होता क्या है। आप लोग अगर वेब जीआईएस एप्लीकेशंस को देखेंगे, समझ लीजिए कि अबाउट 60-70% पार्ट जो है वो डेडिकेटेड है वेब मैपिंग के लिए। बाकी टास्क भी होते हैं, बट वेब मैपिंग स्टार्टिंग ही वेब जीआईएस का वेब मैपिंग से हुआ है। जेरोक्स पार्क मैपवेयर की जो बात कर रहे थे अभी हम लोग थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर के केस में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेब मैपिंग। तो वेब मैपिंग से ही वेब जीआईएस की स्टार्ट हुई, और आज के भी टाइम में वेब मैपिंग एक बहुत बहुत रैम्पेंटली यूज्ड एप्लीकेशन है वेब जीआईएस की। ठीक है, वेब मैपिंग के अलोंग दूसरी चीजें हमको मिलती हैं, बट फर्स्ट थिंग इज वेब मैपिंग। सो पहले आप लोग थ्योरेटिकली देखिए इसको, वेब मैपिंग होता क्या है, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल। बड़ा टॉपिक है ये। वेब मैपिंग क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेब मैपिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब मैप्स,
ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। फर्स्ट सर्च, इसको विकिपीडिया पे जाइए और इसको पहले जल्दी से रीड करिए, व्हाट इज वेब मैपिंग। Okay, so let's see what is web mapping. As we have read over here on the Wikipedia, it says web mapping or an online mapping is the process of using the map delivered by GIS on the internet, more specifically in the World Wide Web. A web map or an online map is both served and consumed. Thus, web mapping is more than just web cartography. It is a service by which consumers may choose what map will show. WebGIS emphasizes geodata processing aspect more involved with design aspects such as data acquisition, server
software architecture such as data storage and algorithms than it does the end user reports themselves. The term WebGIS and web mapping remains somewhat synonymous. Okay, this is important. Okay, both of them, both the WebGIS and the web mapping, sometimes they are termed as synonymous, but they are not synonymous. So web mapping is a subset of web maps, WebGIS. Okay, so WebGIS uses web maps, and end users who are web mapping are gaining analytical capabilities. The term LBS refers to mapping, web mapping consumer goods and services. Web mapping usually involves a web browser or other user agent capable of client-server interaction. Question of quality, usability, social benefit, legal constraint are driving its evolution. So we are coming to our own end, web mapping. Okay. So yes, as it is mentioned over there in the Wikipedia page that you have just learned, web mapping basically refers to the delivery of maps and the related functions on the web. So whenever you use, I will first show you an example. Okay. Right now on the screen, you can find this web page. Okay. So this one is the OpenStreetMaps website. And as you can see it over here. Yes. So right now on the screen, you can find that this one is the OpenStreetMap. And this OpenStreetMap is showing the amenity and the adjacent area over here. Okay. So this is what? This is one of the web mapping application that you are just now viewing on the screen. ना आपने ओपन स्ट्रीट मैप खोला, उस पे अपने एनएनआईटी और नियर बाय रीजन का पूरा रोड मैप हम देख रहे हैं, स्ट्रीट मैप देख रहे हैं. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर एक वेब मैप को विजुअलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक वेब मैपिंग की एप्लीकेशन है जो इस समय स्क्रीन पर ओपन है. ऑडियो में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑडियो ठीक आ रहा है मेरा? Yes, ma'am. No problem. ओके. सो ये एक सिंपल वेब मैपिंग एप्लीकेशन है. मेजॉरिटी ऑफ वेब जीआईएस एप्लीकेशन देखेंगे अगर आप, उसमें मैप व्यूइंग कैपेबिलिटी होती ही है. इसीलिए जो टर्म सिनोनिमस की वहां पर बात हो रही है कि दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की जगह कई बार यूज कर लिए जाते हैं, ऑल्दो है नहीं, एक सबसेट है. इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें वेब जीआईएस ऑफर करता है. बट वेब मैपिंग, मैप्स को क्रिएट करना, आप मैप्स को यहाँ पर विजुअलाइज करा सकते हैं. उसके लिए बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पर कई सारे इसमें मिलेंगे ऑप्शंस. ओपन स्ट्रीट मैप है, हेयर मैप है, टॉम है, टेंसेंट है, कई सारे मैप्स, माइक्रोसॉफ्ट बिंग मैप्स हैं. सब कुछ आप अपने स्क्रीन पर पूरे मैप्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहला वेब मैपिंग का काम होता है. यहाँ पर कार्टोग्राफी शायद आप लोग को याद होगा, हम लोग ने जीआईएस में पढ़ा था, है ना. कार्टोग्राफिक डिजाइन इश्यूज पढ़े थे जिसमें कलर, पैटर्न, टेक्सचर, डेंसिटी, साइज, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग ने जीआईएस में ऑलरेडी पढ़ चुका है. उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, वेब पे भी. वो तो हम लोगों ने पेपर मैप्स के लिए पढ़ा था, यहाँ पर वेब के कॉन्टेक्स्ट में वेब कार्टोग्राफी आती है. सो वेब मैपिंग में किस तरीके से मैप डिजाइन करना है, किस तरीके से उस मैप को वेब पर इम्प्लीमेंट कराना है, किस तरीके से उसको क्लाइंट के पास में डिलीवर कराना है, किस तरीके से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसको डिलीवर कराना है. ये बहुत, वेब मैपिंग केवल मैप बनाना नहीं है. इट्स नॉट जस्ट ओनली वेब कार्टोग्राफी, इट इंक्लूड्स सेवरल अदर थिंग्स. That includes how they get generated over the web, how it get transferred to the client machine. This is all involved in the web mapping. ठीक है. Then if we see the evolution of WebGIS, the evolution of WebGIS is also the evolution of web mapping. So both are parallel to each other. If we see the historical background, okay, you can check it, quickly go through this table. Different
different historical evolution of web mapping is given over here, and you can find most of them are also the evolution milestones of WebGIS. Like in 1993, the first interactive web map viewer was developed at Xerox PARC. It allowed the user to specify a map extent, choose map layer, a map projection, and some styling parameters. The response was HTML file and an embedded GIF raster image representing the map. In 1994, the first online atlas was released by Canada known as National Atlas of Canada. 1995, Sun released the first version of Java. Java applets are a huge step regarding the interactive platform independent application of the web. 1995, first version of JavaScript was released. 1996, MapQuest online mapping service started. It is one of the first popular address matching and routing services. Results were displayed using web maps and textual description. 1996, Multimap, a UK-based web mapping service, went online. 1996, Intergraph. What is the new name of Intergraph? अब Intergraph नहीं है, अब इसका नाम क्या है? Hexagonal. Hexagon Geospatial, correct. So it's Hexagon Geospatial now. Initially it was Intergraph. So Intergraph, or nowadays Hexagon Geospatial, GeoMedia Web Map 1.0 was published. One of the first commercial web map server. 1996, Macromedia released Flash Player 1.0. 1997, UMN stands for University of Minnesota Map Server 1.0 was released. 1997, HTML 4.0 was published, which was the first version that allowed styling with CSS. June 1998, as a joint effort from USGS, Microsoft, and HP, the US Terra Server project was started. It was an OGC compatible WMS server viewing aerial images and USGS topo maps. 1998, first version of ISRI commercial ArcView internet map server was released. 2001, W3C released SVG. SVG stands for Scalar Vector Graphics. Scalar Vector Graphics 1.0 specification. SVG is a XML-based markup language for the integration of vector graphics, raster graphics, and text, also supporting animation, multimedia, scripting, and interactivity of and internationalization. 2003, NASA released Whirlwind, one of the first interactive virtual Earth application. 2005, Google released Google Map. 2005, Google released Google Earth. 2005, beta version of Yahoo Maps was released. So इस पूरे का अगर आप एवोल्यूशन देखें तो ये एक तरीके से जो आपने पहले वेब जीआईएस के एवोल्यूशन में पढ़ा था वही चीजें यहाँ पे भी हैं कि 1993 में जो पहला Xerox PARC में स्टीव पर्ड्स ने अपना मैप सर्वर रिलीज किया. इनिशियल कई सारे मैपिंग के आप लोग ने देखे थे, चाहे नेशनल एटलस ऑफ कनाडा हो, चाहे अलेक्जेंड्रिया डिजिटल लाइब्रेरी हो, इस तरीके की ऑनलाइन वर्जन्स आए कई सारे चीजों के. यूएस सेंसस ब्यूरो का बहुत ज्यादा इसमें काम रहा. इन्होंने अपने अलग अलग रोड मैप्स वगैरह जो थे वो ऑनलाइन करे. तो ये इनिशियल डेवलपमेंट हुआ. धीमे धीमे करके उसके बाद आप डेवलपमेंट में देखते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दिखाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस HTML आया, जावास्क्रिप्ट आया. शुरुआत में जीआईएस सर्वर्स अवेलेबल नहीं थे, है ना. वेब सर्वर तो आ गए थे लेकिन जीआईएस सर्वर नहीं आए थे. तो एक और यहाँ पर एक बड़ा इनिशिएटिव हुआ कि जो जीआईएस सर्वर, सबसे पहला जो इसमें यहाँ पर लिखा है 1996 में जियोमीडिया वेब मैप, ये पहला कमर्शियल वेब सर्वर आया, वेब जीआईएस सर्वर आया. देन लेटर ऑन में अगर आप डेवलपमेंट में देखें तो किस तरीके से शिफ्टिंग आपको दिख रही है कि बाद के डेवलपमेंट में कितना 3D डेटा अब आने लग गया. 2005 इन सब के यहाँ पर डेवलपमेंट आप देखिए तो ये सारे 3D डेटा को यहाँ पर देने लगे और एक काफी हद तक एक जो गूगल मैप्स वगैरह थे एक वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एप्लीकेशन दिखना शुरू हुआ. इट्स नॉट लिमिटेड कि एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री तक लिमिटेड है, बल्कि
थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर हमको एप्लीकेशन सब उसका जो दायरा जो था वो एक लोकलाइज या एक रीजनल या एक नेशनल लेवल से बढ़ करके वो ग्लोबलाइज्ड हो गया। तो इस तरीके का डेवलपमेंट हमको वेब मैपिंग में दिखाई देता है। इसी तरीके से वेब जीआईएस का भी सेम ट्रेंड हमको दिखता है और ये सारे वेब जीआईएस के भी डेवलपमेंट रहे। इनिशियल वेब मैपिंग एप्लीकेशंस जो बने वो स्टैटिक इन नेचर थे। स्टैटिक इन नेचर मींस कि आपके सामने एक वेब पेज खुल गया, ठीक है, हमारे सामने हमने एक वेब पेज खोल लिया, यहाँ पर अभी हमारा कहीं यूजर इनपुट नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे हमने एक विकिपीडिया पेज खोला, यहाँ पर हमारे सामने कुछ कंटेंट अवेलेबल है, हम उसको विजुअलाइज करते रहे, यहाँ पर यूजर इनपुट कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर अगर हम इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दूसरा एग्जाम्पल जो ओपन स्ट्रीट मैप्स का है, उस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक तो बेसिक आपके सामने एक वेब मैप बन रहा है, लेकिन सपोज अगर हमको कहीं से कहीं पर जाना है ना, तो यहाँ पर हम यूजर इनपुट के तौर पर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है MNIT रेसिडेंशियल कैंपस, तो यहाँ पर हम अपना सोर्स पोजीशन डेस्टिनेशन पोजीशन दे करके यहाँ पर हमारा पूरा रूट निकल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स एन इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया गया, यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे वो दिखाई दिए, ठीक है। तो इनिशियल जो वेब मैप्स बने दे आर स्टैटिक इन नेचर, वहां पर यूजर का इनपुट कुछ नहीं था, यूजर अपने से बस अलग अलग उसको क्या व्यू करना है वो सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग वो चेंजेस नहीं होते थे। इंटरैक्टिव वेब मैप्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, कई इसमें धीमे धीमे अलग अलग मैप्स आए, रियल टाइम मैप, एनिमेशन मैप, एनालिटिकल मैप्स, कोलैबोरेटिव वेब मैप्स, ये बहुत सारे अलग तरीके के वेब मैप्स यहाँ पर हमको मिले, ठीक है। इसका पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, बड़ा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। तो यहाँ पर वेब मैपिंग में हम लोग ने क्या होता है वेब मैपिंग, एवोल्यूशन ऑफ वेब मैपिंग देख ली। देन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब मैप्स, what are the advantages of web maps and what are the challenges that are faced by the web maps, क्या क्या challenges, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रोप्राइटरी की, कॉपीराइट्स के कई सारे इश्यूज जो इसमें आ जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। प्लस इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे एक एग्जांपल अभी आपने OSM का देखा, ओपन स्ट्रीट मैप्स, इसके सिवा कई सारे वेब मैपिंग के एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कमिंग टर्न मीन्स थर्सडे को इसका एक क्विज भी शेड्यूल रहेगा, थर्सडे मीन्स 27 जनवरी, ठीक है। वेब GIS 4 मीन्स वेब GIS आर्किटेक्चर तक जहां तक हो गया है, वेब मैपिंग नहीं, वेब मैपिंग के पहले तक वेब GIS आर्किटेक्चर तक जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा चुका है, एक तरीके से आज के लेक्चर टर्न तक जितना पढ़ाया जा चुका है, उसकी क्विज जो है वो कमिंग थर्सडे को शेड्यूल रहेगी, ठीक है। तो आपके एंड से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। No questions? Okay then. Thank you so much. And class is over for now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Welcome to all.